Hello students, we are doing topology of real numbers. In this lecture, we will discuss an important result that there exist infinitely many rationals and irrational numbers between two reals. So, theorem करने से पहले let us discuss a small result which we will use in that theorem. So, result is for any real number x, there exists a unique integer z such that x lies between x is greater than or equal to z and less than z plus 1. So we will consider a set S containing m where m belongs to integers such that all m are less than or equal to x. अगर आपके पास ये सेट में जितने भी m हैं और वो लेस देन और इक्वल टू x हैं, इट मीन्स ये जो आपके पास सेट है दिस इज बाउंडेड अबव बाय x. ठीक है, सो अगर ये बाउंडेड अबव है देन बाय कंप्लीटनेस एक्सियम थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट सम लीस्ट अपर बाउंड फॉर दिस. ठीक है, सो यहाँ तक हम करें, अभी पहुंचे. सो फ्रॉम वन द सेट एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इंटीजर्स हैं इसमें एंड इज बाउंडेड बाय एक्स. क्लियर. सो देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस एक्सियम एस मस्ट एग्जिस्ट अ लीस्ट अपर बाउंड. सो लेट अस टेक दैट लीस्ट अपर बाउंड इज z in clear small z. This stands for m are integers. ठीक है, so this is small z, this is capital Z. ठीक है, so let us say this is z. ठीक है, so this z is not integer, this is small z. ये यहाँ पे capital Z है. so let us say that z is least upper bound of set S. तो अगर आपके पास z लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट S का, तो आपका जो हर एलिमेंट है इस सेट का वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू z. ठीक है, और क्योंकि x जो है अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होता है, जो लीस्ट अपर बाउंड होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड. सो लीस्ट अपर बाउंड इज z और upper bound is x, so z is always less than or equal to x. So this is what we get here, z is less than or equal to x. Now we have to prove only that x is less than z plus 1. Let if possible that we will take that x is greater than or equal to z plus 1. So this imply that z plus 1 is less than or equal to x. ठीक है, so इसका क्या मतलब है, all those elements which are less than or equal to x they will contained in set S. तो z प्लस वन भी किसका एलिमेंट हो गया, s का. बट z प्लस वन जो है वो अगर s का एलिमेंट है और हमने लिया हुआ है कि z जो है वो इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड सो z इज अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s. तो जो z प्लस वन है, अब लीस्ट अपर बाउंड और एलिमेंट्स ऑफ सेट में क्या रिलेशन होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट s इज लेस देन और इक्वल टू द लीस्ट अपर बाउंड. लीस्ट अपर बाउंड है z और z प्लस वन किसका एलिमेंट है, सेट S का. तो इस हिसाब से तो जो z प्लस वन है वो लेस देन और इक्वल टू z होगा बिकॉज दिस इज एलिमेंट ऑफ सेट S एंड z इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S. सो दिस विल इम्प्लाई दैट z प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू z, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर assumption that x is greater than or equal to z plus 1. So x is less than z plus 1. So we have the result. Therefore we have x is greater than or equal to z and less than z plus 1. Let us now take the important result theorem. Between two distinct real numbers there are infinitely many rational numbers. So how will we proceed? Let us take two real numbers x and y. ठीक है, डिस्टिंक्ट हैं, दे आर डिस्टिंक्ट मीन्स दे आर नॉट सेम. सो अगर ये सेम नहीं है तो कोई एक इनमें से बड़ा होगा, एक छोटा होगा. सो लेट अस टेक y इज ग्रेटर देन x. सो इफ y इज ग्रेटर देन x देन डिफरेंस ऑफ y माइनस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो इट इज अ पॉजिटिव नंबर. सो पॉजिटिव रियल नंबर है y माइनस एक्स और 1 भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है. तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आपके पास अगर x और y, हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की थी, इफ x एंड y आर टू positive real number then there must exist a natural number such that nx is greater than y. So we will apply that Archimedean property of reals here. Y minus x and 1 are two positive real numbers, so therefore there must exist an integer n such that n into y minus x is greater than 1. So हमने यहाँ पे x की जगह y minus x यूज़ किया और y की जगह 1 यूज़ किया. So we have the relation n into y minus x is greater than 1. So what we get, open
ny minus nx is greater than 1. This imply ny is greater than nx plus 1. So nx plus 1 is less than ny. nx plus 1 भी एक रियल नंबर है. So there must exist a natural number m and m plus 1 such that we have, अब आपके पास कोई रियल नंबर है, वो किसके बीच में, अभी हमने ये ऊपर प्रॉपर्टी की थी, देयर मस्ट एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट एक्स, देयर एग्जिस्ट, अगर आपके पास रियल नंबर कोई एक्स है तो कोई दो इंटीजर्स ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट एक्स लाइज बिटवीन इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन जेड प्लस वन एंड लेस देन जेड प्लस वन. सो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की. फॉर रियल नंबर n प्लस वन देयर मस्ट एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स m एंड m प्लस वन सच दैट nx प्लस वन इज ग्रेटर देन m एंड लेस देन m प्लस वन कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है, वहाँ पे z और z प्लस वन के बीच में रियल नंबर x था, यहाँ पे m और m प्लस वन के बीच में. सो फ्रॉम यूजिंग वन, अब यहाँ पे हमारे पास एन एक्स प्लस वन जो है वो लेस देन एन वाई है और ग्रेटर देन एन है, एम है. तो वी हैव द रिलेशन दैट एन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम बट लेस देन एन वाई. यहाँ से हमने इसका ये उठा लिया और यहाँ से ये रिलेशन उठा लिया. ठीक है, एज nx प्लस वन इज ऑल्सो लेस देन m प्लस वन, देयरफॉर ये कैंसिल हो जाएगा 1 1. वी हैव nx इज ऑल्सो लेस देन m. सो यूजिंग 2 हेयर व्हाट वी गेट, यहाँ पे हमने ये आपके पास देखो यहाँ तक हम पहुँच गए. अब ये जो nx इज लेस देन m, यहाँ पे हम nx यूज कर लेंगे. सो व्हाट वी हैव nx इज लेस देन m, m इज लेस देन और इक्वल, m इज nx प्लस वन. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया ny. ठीक है, इसको हमने ये जो यहाँ पे m था इसके यहाँ पे हमने ये रिलेशन यूज कर लिया दैट m इज ग्रेटर देन nx. ठीक है, सो nx प्लस वन इज नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड m इज नाउ ग्रेटर देन nx. सो हम अगर इस nx प्लस वन को हटा दें बीच में से, सो व्हाट वी गेट nx लेस देन m less than ny. Now dividing with n both side, what we get nx less than now m by n and less than y. ठीक है, so let m by n is r1. ठीक है, m आपके पास क्या था नेचुरल नंबर, n आपके पास क्या था रियल नंबर. so we will get a rational number. so आपके पास रेशनल n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. सो m बाय n एक नेचुरल नंबर है तो m बाय n क्या आ गया एक रेशनल नंबर. सो x और y के बीच में आपको क्या मिल गया एक रेशनल नंबर. सो बिटवीन टू रियल नंबर्स x एंड y देयर लाइज अ रेशनल नंबर विच इज r1. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे x और r1 को. Let us take now x and r1 be the two real numbers and repeating the same arguments which we have done above. So there must exist a real again a rational number r2 between x and r1. ठीक है, so हमें एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम x और r2 को ले लेंगे, रिपीट करेंगे सेम स्टेप्स, तो हमें एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा विच इज r3. So repeating, continuing like this, we will get infinitely many rationals between x and y. So this is the theorem. There exist infinitely many rationals between two real numbers. Next is between two real numbers there are infinitely many irrational numbers. So same ही जो आपने ऊपर concept use किया same उसी तरह से हम proceed करेंगे. Let x and y two real numbers such that x is less than y. ठीक है, y is greater than x. So by subtracting minus root 2 both sides we will get the sign same. So x minus root 2 is also less than y minus root 2. अब ये आपके पास दो रियल नंबर बन गए, x minus root 2 and y minus root 2 are two real numbers. और हमें ये रिजल्ट पता है between two real number there must exist rational. Let us say r1. ठीक है, सो r1 हमने यहाँ पे लिख दिया, अभी हमने ऊपर जैसे प्रूव किया. सो x माइनस रूट टू और y माइनस रूट टू के बीच में एक रेशनल आ गया. अब आपने क्या किया,
x root 2, adding root 2 both sides. So what we get, x is less than r1 plus root 2 and y. What is r1 plus root 2 is an irrational number. So we obtain an irrational number between x and y. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे. तो let us take two real numbers now, x and under the r1 plus under the root 2 r2 now real numbers. So proceeding above, we will get another irrational number between them. So continuing like this, we will find infinitely many irrationals between the two real numbers. Clear? So this is the proof of the theorem. So thank you for watching the video.